Hello everyone, I am Manmay. Welcome back to my YouTube channel. First of all, I am so grateful for your support. How are you all doing? I hope all are doing well and enjoying our English lessons. Today we are going to start simple future tense. As you know, we are already studying tenses and this video is the continued part of that, right? We have done 8 tenses. If you haven't seen my previous videos about tenses, you will find the link in the description, right? I hope if you will see the video till the end, you learn a lot about future tense. Okay, so today we are going to learn about the very first tense of future tense, that is simple future tense. Right? In this class, we will learn the easiest way to talk about the simple future tense. Right? So, when we talk about future, what do we mean? We are talking about anything that happens after now. For example, it could be something that happens 5 minutes now from now. Right? जैसे कि 5 मिनट के बाद भी जो होने वाला है, और 50 years from now. All of that is the future tense. Okay? The following adverbs generally used with the tenses today, today evening, tonight, tomorrow, the day after tomorrow, 2 days after tomorrow, this week, this month, this week, this year, next day and next week. Right? ये सारे जो adverbs है वो हम simple future tense में use करते हैं. Right? In English we have many tenses and ways to talk about. Okay? Some of them are basic and some of them are advanced. So let's start by looking some basic way to talk about future in English. Okay. So 3 basic ways are by using the phrase going to, by using the present continuous, okay, for the future, or by using will, which is what our class today is going to be focusing on. Right? So there are several ways of talking about future in English. Future tense के बारे में बोलने के लिए बहुत सारे ways हैं, जो कि एक है phrase going to हम use कर सकते हैं, दूसरे हम present continuous tense use कर सकते हैं फ्यूचर के बारे में बताने के लिए, तीसरा जो है वो will प्लस verb का फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, जो कि आज ये लेसन इसके ऊपर फोकस किया गया है. राइट? सो हाउ कैन वी थिंक अबाउट दिस? If you are talking about some formal situation, something more official or and formal in business, in academics, or even in a social situation with someone you don't know very well, if it is formal, it is very easy, और we use will plus verb का फर्स्ट फॉर्म. राइट? गोइंग टू और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो फ्यूचर टेंस में इनफॉर्मल सिचुएशन में यूज होता है, और विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है वो फॉर्मल सिचुएशन में यूज होता है. फॉर्मल सिचुएशन मीन्स मोर ऑफिशियल, formal in business, in academics, or even in a social situation with someone you don't know. मीन्स आप किसी को जानते नहीं हो, राइट? उसको आप फॉर्मल वे में बात करोगे, राइट? या बिजनेस में या आपका ऑफिशियल, जब हम बोलेंगे फ्यूचर के बारे में तो हम विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. राइट? इनफॉर्मल मीन्स आपके फ्रेंड्स के साथ हो या आप जिसके साथ क्लोज हो, जिसको आप जानते हो, तो वहाँ हम इनफॉर्मल वे में बात कर सकते हैं, जैसे आप गोइंग टू या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं. राइट? सिंपल फ्यूचर टेंस, व्हेन एंड वेयर वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस. कहाँ और कब हमें सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करना है? द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच वी कैनॉट कंट्रोल.
सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पर हम कोई चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इट एक्सप्रेसेस द फ्यूचर एज फैक्ट, जो फैक्ट है, ठीक है, जो फैक्ट है, जो फ्यूचर में जो होने वाला है उसको हम हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट, उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बी 20 नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे को मुझे 20 ईयर्स हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स आपका जो एज है, जो एज बढ़ता है वो हमारे हाथ नहीं होता है, ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। नेक्स्ट संडे जो है मुझे 20 ईयर्स हो जाएगा कंप्लीट, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। आई हुआ सब्जेक्ट, देन शैल या विल हम आई के पास यूज कर सकते हैं, राइट, और बी जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। ग्लेशियर्स विल मेल्ट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होने वाला है, राइट, ये भी फैक्ट है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस तो जहाँ पर जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो फैक्ट है, जो फ्यूचर में होने वाला है, जो फैक्ट है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वहाँ हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। सेकेंड, we use this tense to talk about what we think or believe will happen in the future. We use this tense to talk about what we think और believe will happen in the future. हम क्या सोच रहे हैं कि हाँ फ्यूचर में ना ये चीज़ होने वाला है, ठीक है, जो चीज़ हम सोच रहे हैं, ठीक है, या बिलीव कर रहे हैं कि नहीं ये चीज़ जो है वो फ्यूचर में होने वाला है, वहाँ हम फ्यूचर टेंस यूज कर सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। प्रेडिक्शन मीन्स द थिंग्स दैट वी प्रिडिक्ट टू हैपन इन द फ्यूचर। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये फ्यूचर में जो है होने वाला है, वहाँ हम सिंपल फ्यूचर टेंस। आई थिंक इट वॉन्ट रेन टुमारो। आई एम श्योर हेलन विल गेट ए फर्स्ट क्लास। हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मैं जो हूँ, मैं सोच रही हूँ कि इट वोंट रेन टुमारो, कल बारिश नहीं होगा। आई एम श्योर हेलन विल गेट ए फर्स्ट क्लास। मैं श्योर हूँ कि हेलन जो है वो फर्स्ट क्लास होगी, ठीक है, तो ये जो है हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में, या हम सोच रहे हैं कि ये होने वाला है फ्यूचर में, राइट। वी ऑल्सो यूज आई एक्सपेक्ट, आई बिलीव, प्रोबेबली, राइट। हम आई थिंक मतलब थिंक भी यूज कर सकते हैं, देन आई एक्सपेक्ट, देन आई बिलीव, प्रोबेबली, ये भी वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। इस वर्ड से हमें मतलब पता चलता है कि हम फ्यूचर के कुछ चीज़ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, राइट, कुछ फ्यूचर के बारे में हम सोच रहे हैं, right. We can use this tense when we decide to do something at the time of speaking. We can use this tense when we decide to do something at the time of, हम जब बोल रहे हैं उसी टाइम ही कुछ डिसाइड किए हैं कि हम ये जो है ये चीज़ करने वाले हैं, ठीक है, या करेंगे, तो वहाँ हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। बोलने के टाइम ही आप डिसाइड करते हो कि मैं ये करूँगा, ठीक है, तब हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रहा है। आई विल टेक एन अम्ब्रेला, बारिश हो रहा है सो मैं एक अम्ब्रेला लेके जाऊंगा, ठीक है, तो उसी टाइम ही आप डिसाइड कर रहे हो कि अम्ब्रेला मुझे लेना है। इट इज़ यूज्ड इन न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ ब्रॉडकास्ट फॉर अनाउंसमेंट ऑफ फ्यूचर प्लान्स, राइट। न्यूज़पेपर में जो अनाउंसमेंट कुछ करना होता है तो वो हेडिंग लाइन में लिखा जाता है, राइट, फ्यूचर प्लान्स के बारे में, तो वो भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखते हैं। द पॉलिटिशियन पार्टीज विल मीट एट द पार्लियामेंट नेक्स्ट फ्राइडे, राइट। पॉलिटिशियन पार्टीज जो है वो पार्लियामेंट में नेक्स्ट फ्राइडे में मिलेंगे, राइट। It is used to express determination, promise, order, offer और command. ये कहाँ पर यूज कर सकते हैं हम? डिटर्मिनेशन, आप कुछ डिटरमाइन कर रहे हो या प्रॉमिस कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, ऑफर और कमांड, राइट, ये सब में हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राघव विल वर्क हार्ड टू गेट ए स्कॉलरशिप, ठीक है, वो उसका
मतलब है वो डिटर्मिनेशन है कि वो जो राघव है वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है स्कॉलरशिप के लिए, राइट। स्कॉलरशिप पाने के लिए वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है राघव, राइट। तो राघव का क्या लक्ष्य है कि उसको स्कॉलरशिप पाना है, राइट। तो वहाँ हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करेंगे, वी विल फाइंड द राइट जॉब फॉर यू, डोंट वरी, ओके। योर लगेज लुक्स वेरी हैवी, आई विल हेल्प यू विथ इट, राइट। ये हैवी नहीं हैवी है, गलती से थोड़ा लिख दिया है इधर। तो योर लगेज लुक्स वेरी हैवी, तुम्हारे जो लगेज है बहुत हैवी लग रहा है, आई विल हेल्प यू विथ इट, राइट। तो डिटर्मिनेशन, ऑफर, कमांड, ऑर्डर, प्रॉमिस में भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज कर सकते हैं। इट इज यूज इन रिक्वेस्ट एंड टू टेल पीपल व्हाट टू डू, रिक्वेस्ट में भी हम यूज कर सकते हैं, विल यू पास मी द सॉल्ट प्लीज, जहाँ आप रिक्वेस्ट करके बोल रहे हो तो वहाँ हम विल भी लगा सकते हैं। द बेबी इज स्लीपिंग, विल यू प्लीज बी क्वाइट, ठीक है, जो बेबी है वो सो रही है तो आप थोड़ा शांत रहोगे, जहाँ आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वहाँ हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। देन हम गोइंग टू का यूज देखेंगे। गोइंग टू जो हम इनफॉर्मल सिचुएशन में यूज करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए, ठीक है। फ्यूचर में कुछ एक्शन होगा उसको बताने के लिए इनफॉर्मल सिचुएशन में हम गोइंग टू यूज करते हैं। तो वो कहाँ यूज करते हैं वो अब देखेंगे। वी यूज गोइंग टू फ्रॉम बी गोइंग टू प्लस बेस ऑफ द वर्ब, बेस ऑफ द वर्ब मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, व्हेन वी हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग बिफोर टॉकिंग अबाउट इट, ठीक है। हम बोलने से पहले कुछ डिसाइड कर दिए हैं उसको बताने के लिए हम गोइंग टू यूज करते हैं, राइट। मतलब हम बोलने से पहले ही हम डिसाइड कर चुके हैं कि हम जो ये करने वाले हैं, राइट। तो वहाँ हम गोइंग टू यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डू यू वांट टू सेल योर मोटर बाइक, आई एम गोइंग टू बाय कार, ठीक है। पूछ रहे हैं हम किसी को, व्हाई डू यू वांट टू सेल योर मोटर बाइक, क्यों तुम चाहते हो तुम्हारे मोटर बाइक बेचने के लिए। तो वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि मोटर बाइक बेच के उसे कार लेना है। आई एम गोइंग टू बाय ए कार, मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी हूँ कि मैं एक कार लेने वाली हूँ, राइट। सेकेंड, वी ऑल्सो यूज द गोइंग टू फॉर्म टू टॉक अबाउट व्हाट सीम्स लाइकली और सर्टेन व्हेन देयर इज समथिंग इन द प्रेजेंट विच टेल्स अस अबाउट द फ्यूचर, राइट। फ्यूचर में एक जो है आप देख रहे हो सिचुएशन वो सर्टेन है, राइट, या श्योर है। समथिंग इन द प्रेजेंट विच टेल्स आस अबाउट फ्यूचर, आप प्रेजेंट को देखकर फ्यूचर में क्या चीज होने वाला है उसमें आप श्योर हो, राइट। तो उसको बताने के लिए गोइंग टू यूज करते हो। मतलब आप प्रेजेंट का सिचुएशन देख के फ्यूचर में क्या होने वाला है उसमें आप श्योर हो तो उसको बताने के लिए हम गोइंग टू यूज करते हैं। चलो एग्जाम्पल से हम क्लैरिफाई करते हैं। इट इज गोइंग टू रेन, लुक एट दोज क्लाउड्स, आप अभी जो है प्रेजेंट का जो क्लाउड है वो देख के आप बता रहे हो कि फ्यूचर में बारिश होने वाला है, राइट। तो अभी प्रेजेंट का क्या सिचुएशन है, क्लाउडी, तो आप वो देख के आप श्योर हो कि फ्यूचर में जो है वो बारिश होने वाला है, तो आप वहां पर गोइंग टू यूज करोगे। द बोट इज फुल ऑफ वाटर, अब प्रेजेंट का सिचुएशन देख रहे हो कि बोट जो है वो पानी में भर गया है। इट इज गोइंग टू सिंक, ये डूबने वाला है, ठीक है। तो प्रेजेंट का सिचुएशन देख के आप फ्यूचर में क्या होने वाला है उसमें आप श्योर हो तो अब हम गोइंग टू यूज करके उसको एक्सप्रेस करेंगे, राइट। द गोइंग टू फॉर्म में ऑल्सो एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज ऑन द पॉइंट ऑफ हैपनिंग। Going to form may also express an action which is on the point of happening, मतलब जो उसी टाइम घटित होने वाला है उसको आप बताने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गेट इन टू द रेन, इट इज गोइंग टू लीव, लेट्स गेट इन टू द रेन, इट इज गोइंग टू लीव। लुक, द क्रैकर इज गोइंग टू एक्सप्लोड, मतलब उसी टाइम वो
घटना घटित होने वाला है, तुरंत ही होने वाला है, तो उस सिचुएशन को आप बताने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करोगे। नोट, फ्यूचर सिंपल प्लस कनेक्टर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनाइट मीन्स, अगर आप कनेक्टर मीन्स जैसे इफ, व्हेन, व्हेनेवर, बिफोर, आफ्टर, अनलेस, अनटिल, ये सब कनेक्टर है, ठीक है, जो आप कंजक्शंस बोल सकते हो, ठीक है। अगर ये है सेंटेंस में तो पहले आपका फ्यूचर सिंपल होगा, मतलब सिंपल फ्यूचर, देन कनेक्टर, देन उसके बाद जो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल से मैं क्लैरिफाई कराती हूँ। आई विल नॉट ईट अंटिल यू विल कम, तुम जब तक नहीं आओगे मैं नहीं खाऊंगी, ठीक है। तो दोनों अगर हम सिंपल फ्यूचर टेंस में बोलेंगे तो वो रॉन्ग है, राइट। आई विल नॉट ईट अंटिल यू विल कम, मैं नहीं खाऊंगी तब तक जब तक तुम नहीं आओगे, ठीक है। तो वो क्या है, दोनों को हम अगर सिंपल फ्यूचर टेंस में बोलेंगे तो वो रॉन्ग है। आई विल नॉट ईट अंटिल यू कम, राइट। अंटिल जो है वो कनेक्टर है, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनाइट रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनाइट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। फर्स्ट जो है वो सिंपल फ्यूचर रहेगा, देन कनेक्टर मीन्स ये सब जो है कंजक्शंस, देन प्रेजेंट इंडेफिनाइट, राइट। आई विल नॉट ईट अंटिल यू कम, राइट। या अंटिल पहले भी फर्स्ट में भी यूज कर सकते हो, अंटिल यू कम आई विल नॉट ईट, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर कनेक्टर या कंजक्शंस कुछ यूज हुआ है सेंटेंस में तो कंजक्शन के कनेक्टर के बाद या कंजक्शन के बाद जो हो आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में होगा, और फर्स्ट वाला जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा, राइट। देन हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस या स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस जो जनरल बात करते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, राइट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स कोई भी सिंपल फ्यूचर टेंस में आपको बोलना है तो उसमें हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, विल या शैल, ओके। शैल जो है आई और वी के पास यूज होता है और कहीं पे भी शैल यूज नहीं होता है, विल हर जगह यूज होता है। आई वी सब्जेक्ट अगर आई है तो भी आप विल यूज कर सकते हो, ही है, सी है, इट है, दे है, यू है, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें आप विल यूज कर सकते हो। बट शैल जो है वो आई एंड वी के पास ही यूज करते हैं। जनरली शैल का यूज बहुत कम जगह में होता है, वो ना के बराबर है। और आजकल जो इंग्लिश ग्रामर में बिल्कुल शैल का यूज जो है वो नहीं हो रहा है, विल का ही ज़्यादातर यूज हो रहा है। तो सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, चाहे आई वी दे इट जो भी है उसमें आप विल का यूज कर सकते हो, राइट। तो जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस है, जो पॉजिटिव सेंटेंस है, उसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या सिंपल फ्यूचर टेंस हो, वहाँ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। देन ऑब्जेक्ट, राइट, आई शैल स्पीक फ्रेंच, ही विल स्पीक फ्रेंच, ओके। आई और वी के पास ही शैल यूज होता है, और ही विल स्पीक जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, देन ऑब्जेक्ट। देन नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल जो भी है वो हेल्पिंग वर्ब वो यूज होगा, देन नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल नॉट स्पीक इंग्लिश, ही विल नॉट स्पीक फ्रेंच, राइट। देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, देन सब्जेक्ट आता है। ये हर कोई टेंस में जो स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, राइट। पहले फर्स्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल जो है वो आएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट।
फॉर एग्जाम्पल शैल आई स्पीक फ्रेंच. ओके. देन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव में है तो विल या शल जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगा. देन नॉट, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. राइट. फॉर एग्जाम्पल शल नॉट आई स्पीक फ्रेंच. राइट. तो शल जो है वो आ गया आगे हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट आ गया. राइट. देन सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट. ओके. तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा. जो भी आप में से नए हो, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो. अगर आपको पसंद आया है तो प्रेस द लाइक बटन, और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कीजिए, ताकि जो भी आगे वीडियो मेरा आएगा वो आप तक जल्दी पहुंच सके. थैंक यू.